हमें चरने की आदत पड़ गई है, ना खाएं बहुत ज़्यादा ना बोले ज़्यादा। तो ये जो एंटी डिप्रेसेंट जो हम दवाई खा रहे हैं वो हमारी बॉडी में हर सेल में रिसेप्टर्स होते हैं, उसको ब्लॉक कर देता है, बंद कर देता है। 8-9 में मुझे एक प्रॉब्लम हो गई। वी वर ट्रैवलिंग टू सम countries in the Southeast Asia and I ended up having something more. शायद जो हमारे नानी दादी और हमारे पूर्वजों ने खाया वो खाएं या सुपर फूड खाएं, फिर इतना फर्क नहीं पड़ता। हमने उसको इतना अब्यूज़ कर लिया है और हम सोच रहे हैं सुपर फूड ऊपर से डाल के उसको ठीक कर लेंगे, तो वो नहीं होगा। जब हम यंग होते हैं ना, हम सोचते हैं हम तो कुछ भी कर सकते हैं। Namaste Bharat. I Anu welcome you all to the only podcast based on वुमेन एंटरप्रेन्योर जर्नी अनु टॉक्स। यहाँ हम आपको मिलवाएंगे उन हस्तियों से जिन्होंने अपनी मेहनत और जुनून के साथ ऊंचाइयों को हासिल किया। नाउ सेल्फ केयर इज व्हाट व्हेन यू टेक योर पावर्स बैक। ये मानना है हमारे आज के गेस्ट का, जो होलिस्टिक वेलनेस में डील करते हैं और भी हमारे बहुत सारे मिथ्स को ब्रेक करना चाहते हैं। आई एम thrilled to introduce our guest for today, Ms. Shalini Jindal, who is a certified holistic wellness coach from International Association of Wellness Professionals and UK Health Coaches Association. Not only this, she also deals in various modalities like Ayurveda, meditation, and emotional intelligence from Daniel Goleman. So I welcome Shalini Jindal. Shalini, hi. Hi Anu. Thank you for having me here on this podcast, and it's such a pleasure and delight to share what I know about all these things to you all. Thank you. शालिनी, आपकी जो अप्रोच है वो बहुत यूनिक है। यू नो इंटरमिंगल आयुर्वेदा, साइकोसोमैटिक असेसमेंट्स, genetic assessments, you do clinical data review, and then you give nutritional and lifestyle evaluation. इतनी सारी चीज़ों को एक साथ मिलाकर करना, आई थिंक यही होलिस्टिक वेलनेस है। क्या है होलिस्टिक वेलनेस? So Anu, you're rightly saying, so combining the modern technology, the modern medicine tools, and using the ancient wisdom of Ayurveda and functional nutrition, which is being practiced all over the world right now. It is very, very important to understand things holistically and then also understand how the mind works, how emotions work. So the emotional intelligence also plays a very big role in our wellness and feeling of well-being. So I combine all these in a very holistic way so that we can assess individually in a very customized way each person's profile, his condition, his health, and then come out with a solution which is tailored to his कितना डिफरेंस है होलिस्टिक वेलनेस एंड ट्रेडिशनल वेलनेस में? एग्जैक्ट, क्योंकि जब हम वेलनेस की बात करते हैं हमें सिर्फ एक चीज़ समझ में आती है, हमारी तबीयत ठीक होनी चाहिए। राइट, हम सब काम अच्छे से कर सके, हमारी तबीयत ठीक होनी चाहिए, बस। क्या होता है होलिस्टिक वेलनेस और कितना डिफरेंस है ये ट्रेडिशनल में, क्या मिस आउट है? राइट। सो हम generally when we are going through our life, we are so busy that we don't pay attention and awareness to our body and the mind. But when we develop a problem which is preventing us from living our life, we go to either a doctor or a coach like myself. But you expect instant results कि ये चीज़, ये problem है, इसको आप fix कर दो. But a coach like me understands that when a problem has come out, that means that it has taken years of some sort of a neglect or imbalance because of which the problem is now surfacing. So what my job is to understand you as a whole human being, not as one problem that you've come out with, and then using all these modalities that you talked about, assess the root cause of the problem. What is the root cause? ये mind से आ रही है, ये body से आ रही है, body से आ रही है तो digestion से आ रही है, liver से आ रही है तो ये kidney problem है, तो ये heart, लेकिन ये आ कहाँ से रही है? तो the root cause assessment only comes through a holistic approach. And then the solution, of course, is not single, is not just one thing. It is a whole approach of mind, body, diet, lifestyle, how you sleep, how you wake up, how much you move during the day. All of that is helpful in arriving at a good solution for the person. आपका मानना है कि कोई भी बीमारी सबसे पहले हमारे अंदर में होती है। Right. It's not only about the superficial things. So Right. whatever comes, whatever we feel, whatever we suffer from comes within, from Yes. within, Yes. inner self. Yes. What is this concept all about?
So what you're just talking about is emotional intelligence. It's called EQ. So the very famous Daniel Goleman has talked about EQ and the four pillars of EQ, which is self-awareness, self-regulation, social awareness, and relationship management. But how does that affect me and you, a normal person who's not going to a big corporate office and running thousands of employees? How is it helpful to all of us? हम सोचते हैं कि हमारी नीड्स क्या है, हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं. व्हाट इज़ माई नेबर वांट, आई वांट दैट. इसने ये गाड़ी खरीदी, इसने ये साड़ी खरीदी, मुझे यही चाहिए. लेकिन उससे हमें फुलफिलमेंट क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि हम सेल्फ अवेयर नहीं हैं. इफ़ वी हैव अवेयरनेस ऑफ आवर ओन नीड्स, हमें एक्चुअल में क्या चाहिए, देन वी बिकम फुलफिल्ड एज अ ह्यूमन बीइंग. फिर हमें लोगों को मैनेज करना है, डे टू डे लिविंग में एक रिलेशनशिप के थ्रू बहुत चीज़ें अचीव करनी होती हैं, एक फैमिली को चलाना होता है, या एज अ एंटरप्रेन्योर आई नीड टू मैनेज माई एम्प्लॉयज़. इफ़ आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ टू रेगुलेट माई इमोशंस or to manage my relationship with these people, then I will not be an effective leader or a boss or a mother. So even to manage a mother and child relationships, if I don't regulate my emotions, मेरा बच्चा क्या सीखेगा? Yeah, if I can't manage my employees' emotions, then how will I manage them and get them to do effective work, efficient work? So ये सब चीज़ें एक normal life, normal ज़िंदगी में भी बहुत important होती हैं. शालिनी, मैक्सिमम लोगों का मानना है कि जितनी भी बीमारियां हैं वो सिर्फ दवाइयाँ लेने से ठीक हो जाती हैं, पर आप कहते हो जितनी बीमारियां होती हैं वो पहले अंदर से शुरू होती हैं. एंड इफ़ वी आर एड्रेसिंग देम अंदर से, पहले हम रूट कॉज को हील करते हैं तो हम ऊपर सब कुछ ठीक कर सकते हैं. Right. क्या कॉन्सेप्ट है ये? So this is part of holistic coaching. एंड इसमें इसका जो टर्म है वो एक डैनियल गोलमैन करके बहुत बड़े राइटर हैं जिन्होंने दिया था. इट्स कॉल्ड इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल कोशेंट. सो उसमें 4 चीज़ों की वो बात करते हैं. सेल्फ अवेयरनेस, खुद को समझना, सेल्फ रेगुलेशन, खुद को मैनेज करना, सोशल अवेयरनेस, दूसरे के इमोशंस को समझना, एंड रिलेशनशिप मैनेजमेंट, दूसरे के रिलेशनशिप को मैनेज करना. इस चीज़ को अगर हम समझ लें, एक डे टू डे लाइफ में अप्लाई करें, तो इससे हमें बहुत फ़ायदा हो सकता है. हमारे इमोशंस अगर रेगुलेट रहेंगे तो हमारी बॉडी में जो डिजीज़ेस हम मानते हैं कि हर चीज़ माइंड से शुरू होती है, फिर वो मैटर की तरह बॉडी में एक्सप्रेस होती है, वो नहीं होगी. सो ये चीज़ें, 4 चीज़ें क्या हैं? इमोशनल अवेयरनेस क्या है? सो जैसे मैं देखूं कि मेरे पड़ोसी है, वो नई गाड़ी लेकर आया है, या मेरे एक किसी फ्रेंड ने एक नई साड़ी खरीदी यहाँ से जाकर, या कुछ एक नया कुछ भी गैजेट खरीदा, मुझे भी चाहिए. लेकिन ये हम ये करते करते इस रेस में इतना आगे निकल जाते हैं, हम रियलाइज़ नहीं करते कि हमें उससे फुलफिलमेंट नहीं मिल रही है. फिर भी हमें सेटिस्फैक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि हम अपने आप को नहीं समझते, सेल्फ अवेयरनेस नहीं है हमारे अंदर. तो ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जो हमें समझनी चाहिए कि हमें ज़रूरत है इन नॉर्मल लाइफ. ये किसी बड़े कॉर्पोरेट ऑफिस में रहने के लिए, उसमें काम करने के लिए ज़रूरत नहीं है. हमें अपनी नॉर्मल लाइफ को जीने के लिए ये समझना चाहिए कि हम कौन हैं, हमें क्या चाहिए, हमारी क्या ज़रूरतें हैं, क्या चीज़ हम दूसरों के लिए कर रहे हैं, क्या चीज़ हम खुद के लिए कर रहे हैं. इट्स कॉल्ड सेल्फ अवेयरनेस. दूसरी चीज़ सेल्फ रेगुलेशन. अगर मैं आज कोई मेरे सामने आए और जो मेरे मन में आया मैंने उसको बोल दिया, कल को मुझे उस बंदे से फिर से बात करनी है, या मेरा कोई डीप रिलेशनशिप है, मैं उसको कैसे मैनेज करूँगी? तो एक सेल्फ रेगुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. कोई बच्चा है, वो अपनी माँ को देखता है, वो माँ कैसे बिहेव करती है, वो जो कह रही है वो नहीं मानता है, जो देख रहे हैं बच्चे वो मान रहे हैं. अगर माँ अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही है तो बच्चा भी लाइफ में आगे वही सीखा. तो रेगुलेशन कितना इंपॉर्टेंट है. एंड ऑफिस एटमॉस्फेयर में अपने आप को कंडक्ट करना एक तरीके से, वो तो हम सब जानते ही हैं. देन द थर्ड थिंग इज रिलेशनशिप मैनेजमेंट एंड सोशल अवेयरनेस. हम दूसरों को समझें, वो क्या सोच रहा है, क्या चाह रहा है, किस इन्वायरमेंट से वो उठ के हमारे यहाँ आया है. जैसे फॉर एग्जाम्पल मेड्स है, वो किस एनवायरनमेंट से उठ के हमारे घर में आई हैं, क्या वो अपनी प्रॉब्लम से जूझ रही हैं, वो हम नहीं समझेंगे तो हम उनको ठीक से मैनेज नहीं कर पाएंगे, वो हमारे साथ खुश नहीं रहेंगे. वो एक इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, डे टू डे हम उसको मैनेज नहीं कर पाएंगे. तो इसलिए वो समझना कि उनका क्या एनवायरनमेंट है, हमारे फ्रेंड्स आज किस मूड से हमसे मिलने आए हैं, उनकी किसी से लड़ाई तो नहीं हुई, क्या चल रहा है उनके दिमाग में, अगर उसको नहीं समझेंगे तो हम एक फ्रेंडशिप का कदरदान नहीं बन पाएंगे. तो हर चीज़ को मैनेज करने के लिए सोशल रिलेशनशिप्स को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है. तो मैं ये मानती हूँ EQ इज़ नॉट ओनली फॉर वर्क प्लेस, इट इज़ ऑल्सो फॉर डे टू डे लाइफ. तो इसको हम इंटीग्रेट करेंगे एक समझ कर, एक इंसान को जो हमारे पास आया हेल्प के लिए, एक बॉडी इशू के लिए, अगर हम EQ को समझें तो हम उसकी बहुत हद तक बहुत जल्दी हेल्प कर पाएंगे. आयुर्वेदा बहुत स्लो है एंड आयुर्वेदा इज नॉट मेंट फॉर मॉडर्न लाइफस्टाइल. हाउ एक्यूरेट इज दिस? सो इसको
मैं आई आंसर दिस क्वेश्चन, पर उससे पहले आई वांट टू टेल एवरीवन कि आयुर्वेदा इज अ वेरी एंशिएंट साइंस. इट्स 5000 ईयर ओल्ड साइंस. ये आज की साइंस नहीं है. तो ये हमसे बहुत, जो हम आज समझ रहे हैं, बहुत ज़्यादा समझ के, बहुत ज़्यादा ऋषि मुनि और बहुत सारा ज़्यादा जो कहना चाहिए वैद्य लोगों ने इनको जो सोच समझ कर एक्सपेरिमेंट कर कर बनाया है, इसको हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए. नंबर 1, इसकी जो हिस्ट्री है बहुत पुरानी है. नंबर 2, आयुर्वेदा बिलीव्स कि हम 5 भूतों से बने हैं, 5 तत्वों से बने हैं. एयर, वाटर, अर्थ, आकाश, स्पेस एंड फायर. तो ये 5 चीज़ें हमारी बॉडी को बनाती हैं. बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं, तो इसको हमें समझना चाहिए. जैसे एक बच्चा है, 9 महीने में वो एक माँ के पेट में रहता है और फिर जन्म लेता है. इन 5 तत्वों से बनता है. तो अगर हम 9 महीने लगा के एक बेबी को बॉर्न कर रहे हैं, तो अगर उस 5 तत्व को हम बनाने में इतना टाइम दे रहे हैं, तो अगर उस चीज़ को अगर हम एक एडल्ट बॉडी में देखें, तो उसमें कितनी सारी चीज़ें, इम्बैलेंसेस क्रिएट हो चुके हैं, जिसकी वजह से वो बॉडी में डिजीज़ आई है. तो वो आयुर्वेदा को हम स्लो इसलिए मानते हैं क्योंकि हम उन 5 तत्वों को देख के उसको बैलेंस में ला रहे हैं. हम बोलते हैं आयुर्वेदा में त्रयोदोषा. क्या त्रयोदोषा हैं? वाता, पित्ता एंड कफा. उनका क्या रोल है, उन एलिमेंट्स को कैसे बैलेंस किया जाए, कैसे रूट कॉज से समझा जाए. अगर हम उसको नहीं समझेंगे, नई रूट कॉज से अटेंड करेंगे, तो हम सुपरफिशियली किसी को दवाई देके ठीक करके हम कहाँ तक उसकी हेल्थ को मेंटेन कर पाएंगे. हमने डिजीज़ को सिम्टोमेटिकली ट्रीट कर लिया, हमने उसको हेल्थ की तरफ नहीं लेकर गए. तो हेल्थ की तरफ लेके जाने के लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड द रूट. उसके 5 एलिमेंट्स जो जिससे वो बॉडी बनी है, उसमें क्या इम्बैलेंस है, क्या उसकी नेचर है, क्या उसकी विकृति है, अभी क्या उसकी स्टेट ऑफ बॉडी है, उसको हम रिस्टोर करेंगे तो ही हमारी स्टेट ऑफ वेलबींग और हेल्थ. क्या कोई नॉर्मल इंसान को पता लग सकता है कि जो दोषा है हमारे, ये मतलब मुझे क्या है? अगर मुझे आयुर्वेदिक के बारे में कुछ पता नहीं है, कैन आई नो अबाउट इट बाय एनालिसिस? ऐसा कोई सर्टेन टेस्ट है जो मैं घर पे कर सकती हूँ? बिल्कुल 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 कर सकते हैं. अपने घर के लिविंग रूम में बैठ के, अपने AC वाले हॉल में बैठ के आप आराम से ये टेस्ट कर सकते हैं. इट इज़ कॉमन एंड अवेलेबल टू एवरी पर्सन ऑन दिस प्लैनेट. देयर आर मेनी सच bodies of work which have been done and shared with the world through various websites, and there are various websites through which you can do these tests. You can come to me, I can conduct the test for you, or you can do them online and know what is your dosha. उसमें 2 चीज़ें रहती हैं कि आपका क्या प्रकृति है. आप एज अ बेबी जब आप 9 महीने वूम में रहकर जब आप बाहर आए, तो आपकी क्या नेचर थी, उसको कहते हैं हम प्रकृति. अब आपने ज़िंदगी जी है, आपने अपनी बॉडी को अब्यूज़ किया है, तो अब आपकी बॉडी की क्या स्टेट ऑफ हेल्थ है, उसको हम कहते हैं विकृति. तो ये चेंज होता है? ये चेंज होता रहता है. विकृति कीप्स चेंजिंग एज पर द वे वी ट्रीट आवर बॉडी एंड माइंड. एंड ये खाली बॉडी का नहीं होता, ये माइंड का भी होता है. तो बॉडी एंड माइंड को आयुर्वेदा में एक देखा जाता है. अगर मेरी वाता विकृति है, तो मेरे वाता टेंडेंसीज रहेंगी. आई विल बी मल्टीटास्किंग, मेरा फोकस कम रहेगा, मुझे एंग्जाइटी जल्दी होगी, मुझे नींद ना आने की प्रॉब्लम रहेगी. अगर मेरी काफा टेंडेंसी है, तो मुझे नींद ज़्यादा आएगी, थोड़ा सा लेजीपन रहेगा शरीर में, लेकिन मैं बहुत स्टेबल हूँ, बहुत सिक्योर हूँ, लोग मेरे पर आते हैं, मेरे पर भरोसा करते हैं. अब पित्ता पर्सन, उसको वो फायरी है, एम्बिशियस है, कुछ अचीव करना है, कहीं जाके नया कुछ क्रिएट करना है, पित्ता टेंडेंसी है उसकी. तो ये मेंटल टेंडेंसीज की भी एक डेफिनेशन है, नॉट ओनली बॉडी टेंडेंसीज. और हम ये सब इमोशनल इंटेलिजेंस से रेगुलेट कर सकते हैं. सो आयुर्वेदा एंड इमोशनल EQ दोनों आपस में बहुत कॉम्प्लीमेंट्री है. ओके. एक सबसे बड़ा मिथ होता है, मेरे हाथ मोटे हैं, मेरे मम्मा को थायराइड है, मेरे पापा को डायबिटीज़ है, इसलिए मुझे भी है. ये सब चीज़ें मुझे भी हैं. जेनेटिकली कितना सच होता है कि आज मैं जो भी सफ़र कर रही हूँ, आज मेरी बॉडी में जो डिजीज़ है, राइट, दिस इज बिकॉज ऑफ माई जीन्स. सी, जीन्स ट्रूली रन many functions, almost all the functions of our body. हमारी बॉडी में 20,000 से भी ज़्यादा जीन्स हैं. कुछ हमें इनहेरिट करी गई हैं और कुछ हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं. इट्स कॉल्ड द साइंस ऑफ एपिजेनेटिक्स. तो ये मिथ है कि खाली जो हमें इनहेरिट किया है, या जो हमारे पेरेंट्स को, ग्रैंड पेरेंट्स को, हमारे ब्लड में लाइन में रहा है, हमें वो लेना ही लेना है, हमें वो सफ़र करना ही पड़ेगा. ऐसा नहीं है. Through the science of epigenetics, we understand now that there are many genes which we can influence. उन genes को हम अपने खाने पीने से, अपने lifestyle से,
अपने इन्वायरमेंट से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग अनु दैट वी डोंट नो दिस कि हम अपने खाने से अपनी जीन्स को कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं. इट्स सच अ अनहर्ड फैक्ट, राइट? हम अपनी लाइफस्टाइल से कैसे अपनी जीन्स मॉडिफाई कर सकते हैं. मैंने ये सुना है जीन्स तो सेट हो चुके हैं, अब मैं चाहे कितनी भी कोशिश कर लूं, ये मैंने कितनी एक्सरसाइज करी, मैंने वेट लूज कर लिया, लेकिन मेरे जीन्स ही ऐसे हैं, मम्मा पापा मोटे हैं इसलिए मैं वापस से मोटी हो जाती हूँ. नहीं, that is a myth. We can always help ourselves. We have been given this right and responsibility to help ourselves. And यही मेरा पैशन है, यही मैं दुनिया के पास ले जाना चाहती हूँ कि हम we are empowered. We can take care of ourselves. It's not like कि जो मिल गया वही हमारी किस्मत है. हमारी हेल्थ हमारी किस्मत नहीं है, हमारी हेल्थ हमारे हाथ में है. तो there are many genes of which I have selected 7 genes. मैं उन 7 genes पे काम करती हूँ. मैं उनको समझती हूँ कि क्या फंक्शन है, उसमें अंडर एक्सप्रेशन है, ओवर एक्सप्रेशन, मीनिंग हमने अपने डाइट से उसको, अपने लाइफस्टाइल से कितना उसको ओवर अंडर एक्सप्रेस किया है, खराब कर, डर्टी कर दिया है उसको. इन लेमैन टर्म्स इट्स कॉल्ड डर्टी. जीन्स हैव बिकम डर्टी. तो उसको मैं कैसे ठीक कर सकती हूँ? अगर खराब कर सकते हैं तो ठीक भी कर सकते हैं, नेचुरल सी बात है. तो 7 जीन्स हैं जो हमारी एनर्जी प्रोडक्शन, जो हमारी एजिंग को अफेक्ट करती है, जो हमारे हॉर्मोन्स को अफेक्ट करती हैं. देयर 7 जीन्स विच वी कैन मॉडिफाई विद द हेल्प ऑफ अ गुड डाइट, गुड लाइफस्टाइल एंड गुड एनवायरनमेंट. गुड लाइफस्टाइल बहुत बड़ा वेग कुछ एम्बिगेट टर्म है. हाँ. होता क्या है गुड लाइफस्टाइल? गुड लाइफस्टाइल में खाना तो एक लेजी मैन्स वे ऑफ फिक्सिंग द हेल्थ है. खाना तो हम खा ही सकते हैं, अच्छा अप्रोप्रिएट खाना, उसकी बात हम बाद में करेंगे. लेकिन उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं. हम सोते कैसे हैं, कितने बजे सोते हैं, डू वी फॉलो द रूटीन ऑफ द सन, डू वी फॉलो सर्केडियन रिदम, हम टाइम से सो रहे हैं, टाइम से उठ रहे हैं, हमारी क्वालिटी ऑफ स्लीप कैसी है. दैट रियली डिटर्मिन्स कि हमारी बॉडी अपने आप को कैसे हील करती है, कैसे हम रिकवर करते हैं डिजीजेस से, कैसे हमारा फैट मेटाबॉलिज्म है. हम अगर वेट लूज कर रहे हैं और नहीं कर पा रहे हैं, उसका एक रीज़न ये भी है कि अनु की हम सोते नहीं हैं ढंग से. अगर हम ढंग से सोएं तो हमारी बॉडी की अपनी कैपेसिटी है टू हील एंड टू कम टू द राइट वेट, विच वी डोंट नो. हम सोचते हैं चलो 6-7 घंटे सो लिए, हमने ये खा लिया, हमने एक्सरसाइज कर लिया, हम फिट हो जाएंगे, हम वेट लूज कर जाएंगे. ऐसा ज़रूरी नहीं है. हमारी स्लीप क्वालिटी बहुत इफेक्ट करती है. जो थॉट्स हमारे दिमाग में आते हैं वो बहुत इफेक्ट करते हैं हमारी बॉडी में. रेगुलेट कर सकते हैं हम आयुर्वेदा और इन सब चीज़ों से? हाँ, सो आयुर्वेदा इज वन पार्ट ऑफ द इंटीग्रेटिव अप्रोच दैट आई हैव. सो इंटीग्रेटिव अप्रोच में आयुर्वेदा को हम यूज़ करते हैं, हम मॉडर्न मेडिसिन को यूज़ कर रहे हैं कि उसके टूल्स क्या हैं, आपके ब्लड टेस्ट के मार्कर्स क्या हैं, उनको समझ रहे हैं. आपका इमोशनल स्टेट क्या है, आपका करंट लाइफस्टाइल क्या है, जेनेटिक असेसमेंट करते हैं तो उसमें देखते हैं कि आपकी जीन ओवर अंडर एक्सप्रेस्ड है. तो उसको हम इंटीग्रेटिव अप्रोच से उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं. मैक्सिमम लोगों को कोलेस्ट्रॉल का इशू है, कोलेस्ट्रॉल हाई है. कोलेस्ट्रॉल हाई सिर्फ तेल की वजह से होता है या फिर कुछ और भी इश्यूज हो सकते हैं? सो जो भी चीज़ आज हमारी बॉडी में दिख रही है ना, वो 20 साल पहले शुरू हुई थी. हैव यू हर्ड ऑफ कंपाउंडिंग? हम सब जानते हैं कंपाउंडिंग इंटरेस्ट क्या होता है. बैंक में अपने पैसे रखे, हर साल आपने 100 रुपये डाले और वो हर साल 12-13-14% जो भी उस समय का रेट है उस पर वो बढ़ते जा रहे हैं. फिर हमें इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलता है, उसको हम बोलते हैं कंपाउंडिंग. ये हम सब समझते हैं, लेकिन हमने कंपाउंडिंग को कभी हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा नहीं देखा होगा. सो एल्बर्ट आइंस्टाइन वंस सेड compounding is a very interesting concept. If you know it, you will earn it, and if you don't know it, you will pay it. Okay. Yeah. So अगर आप नहीं जानते हैं तो उसका प्राइस आप आज पे कर रहे हैं. अगर आपको कोलेस्ट्रॉल इशू आज है या थायराइड इशू आज है तो उसकी कंपाउंडिंग शुरू हुई थी 20 साल पहले. Yes. Small habits, small changes which you could have incorporated 20 years ago will yield to bigger benefits 20 years later. I think major reason हो सकता है जो मिड लाइफ क्राइसिस होती है 40s पे शुरू होती है, 20s से जब हमारे यंगस्टर्स ध्यान नहीं देते, बिल्कुल नया लाइफ होता है, they fall into the bad habits like vaping, alcoholism, रात भर जगना, क्लबिंग करना. I mean, how this is affecting the diseases you are getting at the age of 40 or later. Yeah. So मैं यही सोचती हूँ कि अनु की जब हम यंग होते हैं ना, हम सोचते हैं हम तो कुछ भी कर सकते हैं. हम अपने द वर्ल्ड इज आवर्स, कुछ भी नहीं हो रहा, हमें कुछ भी नहीं होता, हम ये भी खा लेते हैं वो भी खा लेते हैं, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता. हम ये मानते हैं, लेकिन हम
आई वॉन्ट टू कम बैक टू इवन बिफोर दैट, हम ये सब करते क्यों हैं, हम ये सब खाते क्यों हैं? क्योंकि हमारी वो नीड्स हैं, इमोशनल नीड्स एज ह्यूमन बींग्स, सबकी वो नीड्स हैं। क्योंकि उसकी बातें नहीं होती हैं, हम एक इंटीग्रेटिव अप्रोच ऑफ लिविंग की बात नहीं करते हैं, एक इमोशंस की बात नहीं करते हैं। हमें सिखाया जाता है इमोशंस को बताना नहीं है, दिखाना नहीं है। यू विल बी कंसिडर्ड वीक कि आप अपने इमोशंस को शेयर कर रहे हो, आप रो रहे हो, आप वीक हो। लेकिन अगर हम अपने इमोशंस को कंट्रोल में लाते हैं या उनको समझते हैं और उनको पूरा करते हैं थ्रू गुड रिलेशनशिप्स, तो हमें वो नीड्स नहीं होती हैं। सी ऑल दीज थिंग्स दैट वी डू, वेपिज्म, अल्कोहलिज्म, एनी सब्सटेंस अब्यूज, पार्टिंग, लेट नाइट, क्लबिंग, ये हम इसलिए करते हैं कि हमारी वो नीड्स हैं, जो बेसिक नीड्स हैं, वो अनफुलफिल्ड है। हम उनको समझ ही नहीं पाए कभी, उनको हम कभी फुलफिल कर ही नहीं पाए। लेकिन ये अवेयर कैसे होगा कि मतलब आई एम वेपिंग, मे बी बिकॉज मेरे एक फ्रेंड ने कहा है आजकल कल्चर है एंड दिस इज वेरी इन, राइट? क्योंकि हाँ, सही बात है। दिस इज हाउ इट इज रिलेटेड टू दैट मेरी नीड कंप्लीट नहीं। अगर मतलब मुझे कोई आकर ऐसे बोलता है कि यू नो यू आर डूइंग दिस बिकॉज समथिंग इज मिसिंग इनसाइड यू, but not because you are a part of the you know this peership. Yes, right. So what is this all about? See, हम सब एक माहौल के थ्रू गुजरते हैं सारे। हमारे टाइम 20 years बैक, 30 years बैक एक माहौल था। आज एक माहौल बन गया है कि वेप करना है। लेकिन ये माहौल क्यों बना? वी शुड आस्क दिस क्वेश्चन। ये माहौल इसलिए बना कि हमने घरों में वो रिलेशनशिप्स और वो बॉन्ड्स कल्टिवेट नहीं किए, अपनी नेबरहुड में वो सपोर्ट सिस्टम नहीं देखा कि हम एक दूसरे की केयर करते हैं, लुकआउट करते हैं। हम जब बड़े हो रहे थे, हमने लुकआउट का कल्चर देखा है कि यार हमारे पड़ोस का बच्चा तो ये कर रहा है, हमें उसको बताना चाहिए। या अगर उसको ज़रूरत है, वो उसका हस्बैंड बाहर काम करता है इस सिटी से, तो हम इसकी हेल्प करते हैं इस लेडी की। तो ये कल्चर था एक सपोर्ट का नेबरहुड में। हमारी एक सिस्टम था कि घर में बच्चे ये करते हैं, बड़े ये करते हैं, दादा दादी ये करते हैं, एक फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है, मिल के सब रहते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं। एक बॉन्डिंग थी क्लोज विद एवरीवन, विद रिलेशनशिप्स, विद नेबरहुड, विद फ्रेंड्स। फ्रेंड्स आ रहे हैं, फ्रेंड्स के माँ बाप भी आ रहे हैं, घर उठना बैठना है, सब जानते हैं एक दूसरे को, राइट? तो वो एक बॉन्डिंग थी, वो एक माहौल था। आजकल वो माहौल नहीं है, हमारा वो सपोर्ट सिस्टम चला गया हमसे। आजकल हम जानते नहीं हमारा पड़ोसी कौन है, फ़ोन पे अपॉइंटमेंट लेते हैं मिलने से पहले, राइट? हमें ज़रूरत हो तो हम कभी नहीं जाएंगे अपने पड़ोसी के पास। हाँ, कोई फ्रेंड है कहीं दूर रहता है, उससे ज़रूर हेल्प मांगेंगे। तो वो रिलेशनशिप्स कहाँ गई, वो बॉन्डिंग कहाँ गई? तो वो नहीं है, तो वो कल्चर नहीं है आजकल। तो हम अपने फ्रेंड्स से जो वो कर रहा है उस पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो उसके साथ एक्सेप्टेंस के लिए जो सामने जो चल रहा है वो हम करने लगते हैं, एक पीयर प्रेशर में आ जाते हैं कि जो कपड़े वो पहन रहा है वैसे कपड़े हम भी पहने, जहाँ वो लेटेस्ट रेस्टोरेंट में जाके खाना खा रहा है हम भी वैसे पैसे खर्चें, चाहे हमारी वो पॉकेट अलाउ करे ना करे, राइट? हम एक्सेप्टेंस के लिए, उसको सपोर्ट बनाने के लिए अपना हम बहुत कुछ करते हैं, क्योंकि हमारे एग्जिस्टिंग सेटअप में वो चीज़ें नहीं हैं, वो चली गई हैं। और इस रैट रेस में आते आते हम अपने आप को व्यूज, अपने आप को टॉर्चर करते जाते हैं, मेंटली प्रेशर लेते हैं, नेगेटिव हार्मोन रिलीज होते होंगे। इट बिकम्स अ विशियस साइकिल। इट बिकम्स अ विशियस साइकिल। अगर हम समझ ले, सेल्फ अवेयर हो जाएं, तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ बदल सकते हैं, बहुत बेसिक लेवल पे बदल सकते हैं, बहुत जल्दी बदल सकते हैं। अगर बच्चा एक 13-14 साल में अगर हम देखें कि वो उसकी वो नीड्स हैं जो फुलफिल नहीं हो पा रही हैं, हम टाइम नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन अगर हम कॉन्शियस होके टाइम निकालें, एफर्ट करें, इंस्टेड ऑफ इंडल्जिंग मोर एंड मोर, हम सही डायरेक्शन में हेल्प करें, उसको गाइड करें, किसी ऐसे एक्सपर्ट के पास ले जाएं जो उसको हेल्प कर सके, तो शायद वो बड़े होके उसके अंदर वो एक्सेसिव सब्सटेंस अब्यूज़ की नीड्स ही ना पैदा हों, वो फुलफिल्ड बच्चा बड़ा होगा, तो उसके अंदर वो एक खुद के अंदर एक जॉय और हैप्पीनेस की कैपेसिटी रहेगी। ये सब चीज़ों में मुझे पता लगा सेल्फ अवेयरनेस आई थिंक इज द की। सेल्फ जब हम सेल्फ अवेयर होते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो होलिस्टिक वेलनेस की हम बात करते हैं, हाँ, वो बहुत बड़ा एक मेजर पॉइंट इसको एड्रेस हम लोग कर पाते हैं। एग्जैक्टली। तो ये मेरा एक मिशन है, एक विजन है कि हम हेल्थ को EQ के थ्रू अप्रोच करें, इमोशनल वेलनेस के थ्रू अप्रोच करें, तो हैबिट्स चेंज करना आसान हो जाता है। हैबिट्स बिल्ड कैरेक्टर, हैबिट्स बिल्ड हेल्थ, हैबिट्स बिल्ड बिहेवियर, बिहेवियर बिल्ड्स हेल्थ। तो अगर हम हैबिट्स को चेंज कर पाएंगे, हम बिहेवियर को चेंज कर पाएंगे, बिहेवियर को चेंज कर पाएंगे तो अपनी हेल्थ को चेंज कर पाएंगे। तो फिजिकल हेल्थ इज लिंक्ड टू इमोशनल हेल्थ इन सच अ वे, इंटीग्रेट वे। जनरली कहा जाता है
कि होलिस्टिक वेलनेस की ज़रूरत सिर्फ उन लोगों को है जिन्हें थोड़ा सा ज़्यादा तबीयत खराब है, यू नो, दोज आर Chronic सफरिंग फ्रॉम द बीमारी क्रॉनिक है. डिजीजेस. या एंड हाउ ट्रू इट इज. इट इज़ नॉट ट्रू, इट इज़ टोटली नॉट ट्रू, क्योंकि क्रॉनिक बनने में, जैसे में हमने अभी बात करी, 20 साल लगते हैं कोई चीज़ को, कंपाउंडिंग की बात करी, तो प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट क्योर ऑफ एनी डिजीज़. prevent. And how do we do that? By working on our health when we have the capacity to be healthy. कैसे स्टार्ट करना चाहिए? आज हमारी लाइफस्टाइल, हमें सबको एक दूसरे को पता है, बहुत भागा दौड़ी चल रही है. Right. सुबह उठते हैं, उससे पहले हमारे पूरे दिन का स्केड्यूल हमारे पास रेडी होता है. Right. बीच में कहीं कुछ आता है तो हमें इसको एडजस्ट करना पड़ता है. इस Right. एडजस्टमेंट वाली लाइफ में हमें हाँ. अपना सेल्फ अवेयरनेस वाली जर्नी स्टार्ट कैसे करनी चाहिए? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा अनु. दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग टू ऑल ऑफ अस, चाहे कि हमारी जो भी एज हो, चाहे जो भी हमारा इकोनॉमिक स्ट्राटा हो, हम रैट रेस में हैं. Exactly. और मैनेज कर रहे हैं और एडजस्ट कर रहे हैं. आज मैं किसी भी एज ग्रुप की बात करती हूँ, भले वो छोटा बच्चा हो या फिर यू नो कॉलेज गोअर, या फिर जिसने नई जॉब ली है, राइट, या फिर लाइक अ वर्किंग वुमेन, एनीवन एल्स, एनी लाइक इवन द एल्डर्स आल्सो, सबकी हालत खराब है. सब एडजस्ट कर रहे हैं कि सब हाँ लोग ठीक. एडजस्ट कर रहे हैं और सब सोच रहे हैं कि हमें सेल्फ अवेयर करना है. सेल्फ अवेयर होता क्या है और होलिस्टिक वेलनेस, मतलब ये सब चीजें कैसे करनी चाहिए, कहाँ से शुरू करूँ, कैसे करनी चाहिए? सो in this fast-paced culture, in this culture of instant gratification, कि मुझे ये खाना है, जोमेटो किया, आ गया घर. इंस्टेंट नूडल्स खाते हैं, इंस्टेंट नूडल्स खाते हैं, इंस्टेंट एवरीथिंग खाते हैं, इंस्टेंट म्यूजिक, इंस्टेंट यूट्यूब पे सारा म्यूजिक है, जोमेटो पे सब चीज़ें अवेलेबल हैं जो हमें खाने को चाहिए, नेटफ्लिक्स पे सारी मूवीज़ हैं, हमें जो चाहिए इंस्टेंट मिलता है हमें. लेकिन हेल्थ इज़ नॉट इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन. हेल्थ हैज़ टू बी बिल्ड slowly, it has to be built, nurtured gradually. It cannot be ordered online. स्टार्ट कहाँ से करूँ? Start. क्या ऐसे छोटे छोटे से चेंजेस हो सकते हैं जो मैं सोचूं कि आज 24 घंटे में, मैं कई बार ये सोचती हूँ कि मेरे दिन में 24 घंटे है ही नहीं, मुझे भगवान ने दिन में 23 घंटे दिए हैं. हाँ. और वो 1 घंटा जो मैंने निकाला है, वो 1 घंटा मैंने खुद के लिए, भले मैं उसके अंदर बैठ के शांति से चाय का एक कप एंजॉय कर रही हूँ, Right. या म्यूजिक एंजॉय कर रही हूँ, हाँ. या कुछ ऐसा कर रही हूँ, ये सब चीज़ों से हेल्प मिलती है. बहुत हेल्प मिलती है. वो जो 1 घंटा आप निकालेंगे अपने लिए, जो किसी चीज़ को एलोकेटेड नहीं है, वो आपको बहुत हेल्प करेगा इन गोइंग विद इन, अपने अंदर जाने में कि हाँ आज मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या अच्छा लग रहा है, आज मेरे दिन में क्या अच्छा निकला, क्या मेरे दिन में ऐसी चीज़ हुई जो मुझे शायद अच्छी ना लगी, उसके बारे में मैं क्या कर सकती हूँ. तो 1 घंटे में बहुत दिमाग में आपकी उथल पुथल होगी, जिससे आपकी लर्निंग होगी और नेक्स्ट डे आपको और अच्छा गुजरेगा. तो वो दैट टेकिंग आउट 1 hour इज़ अ ग्रेट आइडिया, ग्रेट टिप. द अदर थिंग यू कैन डू इज़ मुंह बंद रखें, ना खाएं बहुत ज़्यादा, ना बोले ज़्यादा. That's the number one tip I'd like to share from my side, is कि खाएं भी कम और बोले भी कम. So जिसे हम कहते हैं intermittent fasting. हम क्या है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से हमारे पास खाना हमेशा अवेलेबल है, बनाने वाली भी हैं, फ्रिज भी है, जोमेटो भी है, और एक इमोशनल नीड भी है हमेशा खाने की. तो इन चारों चीज़ों की वजह से हम क्या करते हैं, वी ऑलवेज एंड अप कॉन्स्टेंटली ईटिंग. हमें चरने की आदत पड़ गई है. Exactly. That's the worst thing we are doing to our health. So eating less and with good intervals and not eating constantly is the number one thing you can do for your body. And the number 2 things is कम बोलो, सुनो ज़्यादा. अगर मैं हेल्दी खा रही हूँ, can only eating healthy cure my diseases? No. Even then you require to shut your mouth. कम. अगर मैं पूरा दिन सलाद, अगर यू नो आफ्टर एवरी हाफ एन आवर आई एम ईटिंग फ्रूट्स, बट मैं तो फ्रूट्स खा रही हूँ, फ्रूट्स खा रहे हैं, नट्स खा रहे हैं, हाँ. सैलड्स खा रहे हैं, सब कुछ हेल्दी है, सब कुछ हेल्दी है, लेकिन आप अपनी बॉडी को रेस्ट नहीं दे रहे हैं, डाइजेशन को रेस्ट नहीं दे रहे हैं. There's this Japanese scientist who came up with the idea of fasting as a way to reverse cancer. Okay. And he got a Nobel Prize for that. Why? Because when you go into fasting, your cells die and they regenerate. क्योंकि अगर हम खाना कॉन्स्टेंटली बॉडी में डालते हैं तो सेल्स बिजी हो जाते हैं खाने को यूटिलाइज करने में, डाइजेस्ट करने में, एनर्जी प्रोडक्शन में एंड यूटिलाइजेशन में. जब हम खाना बॉडी में डालना बंद करते हैं तो हमारे सेल मरते भी हैं और नए सेल बनते भी हैं. That's interesting. Yeah, it's called autophagy. इसकी वजह से हमारी बॉडी एक हीलिंग फेज में जाती है.
हमें कोई भी डिजीज़ है, हम ऑटोफेजी के थ्रू उस डिजीज़ को रिवर्स कर सकते हैं और हील कर सकते हैं. सो क्या होना चाहिए टाइम डिफरेंस मिनिमम, लाइक 2 घंटा, 1 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा? What is the ideal time gap between two meals? See, depending on the body, again now I'll come back to Ayurveda. Ayurveda में वाता पित्त कफा के हिसाब से मील्स के टाइमिंग्स रेगुलेट किए हुए हैं. बट ब्रॉडली अगर मैं बात करूँ, फॉर पीपल हु डोंट नो आयुर्वेदा, यू हैव टू ईट, कहते हैं ना 2 वक्त की रोटी जिससे पहले चलता था, तो वो ही एक सही मायने में एक सही लाइफस्टाइल है. 2 वक्त की रोटी दिन में 2 बार खाएं और सुबह उठते ही खाना ना शुरू कर दें. बॉडी को 4 घंटे अपना एक वेकअप करने का टाइम दें. मेटाबॉलिज्म को, अग्नि को बढ़ने का टाइम दें. अग्नि की जो साइकिल है वो सन के साथ साथ चलती है. सन राइज होता है तो अग्नि वीक होती है. सन जब अपनी पीक पे होता है तो अग्नि विच इज़ मेटाबॉलिज्म इन आवर बॉडी पीक पे रहती है, विच इज़ ऑन 2 AM एंड 3 PM, 2 PM एंड 3 PM. तो उस समय ज़्यादा खाएं. फिर सनसेट के हिसाब से जैसे जैसे कम होता जाए, सनसेट होता जाए, अग्नि हमारी वीक होती जाती है, हम कम कर दें खाना. तो उस हिसाब से सबको जनरली स्पीकिंग खाना चाहिए. So that's why our lunch should be the heaviest one. एग्जैक्टली. ब्रेकफास्ट लाइट एंड डिनर वेरी लाइट. डिनर के टाइम तो अग्नि बहुत वीक होती है. सनसेट के बाद तो खाना ही नहीं चाहिए. खा भी रहे हैं तो बहुत लाइट खाएंगे हम. Okay. दैट इज द लॉजिक. So that means ये जो रात का खाने का कल्चर है हमारा, और वो भी लेट नाइट. वो भी सोचिए, late इट्स पॉइजन. इट्स, आप रात में कितना भी आप अमृत भी ले आएंगे ना, वो पॉइजन बन जाएगा आपकी बॉडी में जाके. तो ये जो कहावत है पुरानी कि दिन ढले नहीं खाना चाहिए, हाँ, बहुत सही है. ये बहुत सोच समझ कर, और हमारे वेदों में लिखा है ये सब चीज़ें. तो सुबह उठने से कितनी ज़्यादा जो मैं सुनती हूँ प्रॉब्लम लोगों को, IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम. किसी को भी देखो एसिडिटी हो रही है, ब्लोटिंग हो रही है, क्या रीज़न हो सकता है इसका? हाँ, सो गट इश्यूज, IBS, एसिडिटी, ब्लोटिंग, इन सब के कॉमन इश्यूज हैं. दीज आर ऑल डिफरेंट गैस्ट्रिक डिसऑर्डर्स. लेकिन इश्यूज या रीज़न जो हम कहेंगे वो थोड़े कॉमन होते हैं, क्योंकि जो चीज़ हमारे गट में जा रही है, जो भी हम खाना अपनी बॉडी में डाल रहे हैं, उसका बॉडी में कहीं भी इफेक्ट हो सकता है. वो एसिडिटी बन के निकल सकता है, वो गर्ड बन के निकल सकता है, रिफ्लक्स बन के निकल सकता है, वो डायरिया बन के निकल सकता है, कॉन्स्टिपेशन बन के हो सकता है. तो बहुत सारे इश्यूज हैं जो अंडर द सेम अम्ब्रेला ऑफ गैस्ट्राइटिस इश्यूज में आता है. IBS हमारी प्रकृति पे डिपेंड करता है, या फिर कैसे पता कैसे चलता है कि ये क्या प्रॉब्लम है, मेरे को ये खाने से ये इशू आ रहा है, ये खाने से वो इशू आ रहा है और मुझे IBS है? सो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, हम उस अम्ब्रेला ऑफ इश्यूज को लेते हैं जिसमें हमें कभी कॉन्स्टिपेशन रहता है, कभी डायरिया रहता है. ओके. तो उसको हम एक कैटेगरी बना दी है हमने उसकी. उसको हम कहते हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम. हमारा बाउल बहुत जल्दी इरिटेट हो जाता है, उसको रिएक्ट, जो भी चीज़ हम बॉडी में डाल रहे हैं उसमें एक रिएक्शन आता है हमारी बॉडी में. तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है. जो आयुर्वेदा हम बात करते हैं तो ये कहते हैं कि हमें रूट कॉज पे जाना चाहिए कि हमें कोई भी गैस्ट्रिक इशू है तो वो क्यों है. तो हम इन सब इश्यूज़ के बारे में हम बात करें तो उसका सोल्यूशन बेसिक तरीके से स्टार्ट होता है, और वो एक ही है सबके लिए कि ये रूट कॉज क्या है, हम क्या खा रहे हैं, कब खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, कैसे पका रहे हैं. ये सब चीज़ें उस चीज़ में मायने रखती हैं कि कितना खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कब खा रहे हैं, सुबह खा रहे हैं, दोपहर खा रहे हैं, किस चीज़ के साथ खा रहे हैं. जैसे हम विरुद्ध आहार की बात करते हैं, तो अगर हम ऐसी चीज़ें खाते हैं जो आपस में उनका रसा और वीर्य और विकृति डिफरेंट है, उसकी कॉम्बिनेशन हमें सूट नहीं करेगा, तो हमें IBS की कोई भी सिम्टम्स हो सकते हैं. इज इट पॉसिबल कि कोई एक चीज़ किसी एक के लिए ठीक हो और दूसरे के लिए बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है. तो आयुर्वेदा में हमारा मानना है कि हमारी बॉडी जो डिफाइन होती है वो 5 एलिमेंट से बनी है, लेकिन उसका जो कॉम्बिनेशन है हर बॉडी में डिफरेंट है. अगर ये 5 भूत हैं, ये एयर, वाटर, अर्थ, ईथर एंड स्पेस, ये 5 भूत हमारी सबकी बॉडी में है, लेकिन कॉम्बिनेशन अलग है. तो उसके ऊपर हम डिटर्मिन करते हैं कि इसका ये दोषा टाइप है, ये वाता है, ये पित्ता प्रकृति ज़्यादा है इसमें, या इसमें इम्बैलेंस है. तो उस पर डिपेंड करता है ये 5 भूत का कॉम्बिनेशन क्या है. तो हर एक आदमी का एक अलग प्रकृति और विकृति होती है, अलग नेचर होती है, अलग दोषा बैलेंस होता है. तो वो डिटर्मिन करता है कि हम क्या डाइजेस्ट कर पा रहे हैं, क्या हम डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं. होता क्या है ये विरुद्ध आहार? मैंने सुना है पास्ता बहुत यमी होता है. हाँ, बट पास्ता जो बनता है वो बनता है दूध और नमक मिक्स करके. राइट. ठीक है वो? नहीं, आयुर्वेदा में हम लोग कॉन्सेप्ट है एक विरुद्ध आहार. विरुद्ध आहार मीनिंग ये आहार साथ में अगर जाएं तो ये एक दूसरे के विरुद्ध काम करते हैं.
अब हम ऐसी कोई चीज़ बॉडी में डालना चाहेंगे जो बॉडी में विरुद्ध काम कर रहे हैं? नहीं ना। नहीं। तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है कि क्या चीज़ हमें किसके साथ खानी चाहिए, क्या नहीं खानी चाहिए। मैं एग्जांपल देती हूँ बहुत छोटा सा, सैलड्स का। हम कहते हैं खाने से पहले सैलड खा लो तो खाना हमारा, हम उसके बाद कुछ भी अटरम शटरम खाएं चल जाएगा। हाँ। ऐसा नहीं होता है। सैलड एक रॉ फूड है, और जो अटरम शटरम हम कुछ भी बाद में खा रहे हैं वो एक कुक्ड फूड है। उसकी क्या विकृति है, क्या उसमें उसका क्या रसा है, क्या वो स्वीट है, सावर है, सॉल्टी है। आयुर्वेदा में 6 रसा दिए हुए हैं, स्वीट, सावर, सॉल्टी, पंजेंट, स्ट्रिंजेंट एंड बिटर। ओके। हम उन रसा को आपस में मिक्स नहीं कर सकते, तो वो विरुद्ध आहार कहलाते हैं जिनमें हम रसा मिक्स कर लेते हैं। तो अगर हम सैलड को खा रहे हैं कुक्ड फूड के साथ, जंक फूड के साथ, तो हम अपनी बॉडी में बहुत इनजस्टिस कर रहे हैं, बॉडी में विरुद्ध आहार डाल रहे हैं और बॉडी की डाइजेशन को खराब कर रहे मैं हैं। अपने मन को सेटिस्फाई तो जरूर करती हूँ, पर यू नो कि सैलेड खा लिया, अब चलो सैलेड के साथ मैं पिज्जा खा लेती हूँ तो चलेगा। चलेगा, हाँ। तो वो हमें नहीं करना चाहिए। सैलेड को खाएं, ज़रूर खाएं, फ्रूट्स खाएं, ज़रूर खाएं, लेकिन उसके बाद आधे पौने घंटे तक कुछ और ना खाएं, क्योंकि रॉ फूड को डाइजेस्ट करने के लिए आधा पौना घंटा लगता है, एंड कुक्ड फूड को डाइजेस्ट करने के लिए डिपेंडिंग कि कितना प्रोटीन और फैट है उसमें 2 से 4 घंटे लगते हैं। तो अगर हम दोनों चीज़ें मिक्स कर रहे हैं तो हमारी जो अग्नि है जो डाइजेस्ट करती है वो कंफ्यूज हो जाती है कि मुझे किस इंटेंसिटी से प्रोड्यूस होना है। कुक फूड के लिए ज़्यादा अग्नि चाहिए, रॉ फूड के लिए कम अग्नि चाहिए, तो उससे हमें एसिडिटी, ब्लोटिंग, डायरिया, इंडाइजेशन सब इश्यूज सारे। जितने भी स्प्राउट्स होते हैं, मूंग, मोट, चना, जनरली मैं एक साथ मिक्स करके बनाती हूँ और खाती हूँ। यू थिंक दैट्स राइट, या फिर मुझे अलग अलग सोक करना चाहिए अलग, क्योंकि इनकी प्रकृति भी डिफरेंट होगी? नहीं, ग्रेन्स हैं, प्रोटीन, हाँ, हाई प्रोटीन ग्रेन्स हैं, उनको हमने स्प्राउट किया, अंकुरित किया, उनको एक ज़िंदगी दे दी, वो लाइव एंजाइम्स बन गए हैं उसमें। तो 2 तक तो चलेगा, आप 2 ग्रेन्स मिक्स कर सकते हैं आसानी से। उसको स्प्राउट करिए, बॉईल करिए, हल्का सा लाइटली बॉईल ज़रूर करिए, कच्चा मत खाइए, एंड देन यू कंज्यूम। We can't have that कच्चा? We should कच्चा नहीं not. खाना चाहिए। हाँ। Reason? रीज़न बीइंग कि हर ग्रेन में नेचर ने एक ऐसा एलिमेंट दिया है कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके, क्योंकि नेचर को भी फाइट करना है अपने इन्वायरमेंट से, पेस्ट से, इंसेक्ट्स से, बर्ड्स से। तो अगर नेचर एक्सपोज हो जाती है तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगी। तो ये ऑल दीज ग्रेन्स, दे हैव टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स, एंड दे प्रोटेक्ट देमसेल्व्स विद सम न्यूट्रिएंट्स, जिनको हम बोलते हैं एंटी न्यूट्रिएंट्स, कॉल्ड फाइटेट्स, या इस तरह की और भी चीज़ें नेचर ने बनाई हैं। तो अगर हम उनको कुक नहीं करते हैं, उनको सोक नहीं करते हैं, तो उसमें वो न्यूट्रिएंट्स, एंटी न्यूट्रिएंट्स रह जाते हैं। तो हम उनको जब खाते हैं एंटी न्यूट्रिएंट्स को, तो हमें डाइजेशन की प्रॉब्लम्स होती हैं। मे बी ये रीज़न है, नट्स जितने भी होते हैं तो नट्स हमें सोक करके खाने चाहिए। सोक करें, हल्का सा रोस्ट करें, या फिर उनमें अगर कोई पील है तो पील करें। तो वो एंटी न्यूट्रिएंट्स को हम अवॉइड कर सकते हैं। फ्रूट्स के पील हमें खाने चाहिए या नहीं? वो डिपेंड करता है किस तरह से ग्रो हो रहे हैं। आजकल का जो इन्वायरमेंट है उसमें पेस्टिसाइड्स हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं, वो हाइब्रिड जीन्स या हाइब्रिड सीड्स के थ्रू बना है, उगा हुआ है, तो उस पर डिपेंड करता है। अगर तो वो प्योर है, ऑर्गेनिक है, उसमें कोई हाइब्रिड नहीं है, तो वो फूड की स्किन में भी बहुत फ़ायदे होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अगर हम धो के अच्छे से उसको खाएं तो उसमें एंटी न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं। एंटी न्यूट्रिएंट्स यूजुअली हमारे ग्रेन्स में रहते हैं। और ये जो आजकल के एक ट्रेंड बना है कि जितना ज़्यादा महंगा फ्रूट होगा वो उतना ज़्यादा हमें ना न्यूट्रिशन देगा, इज इट अ फैक्ट? नो नो, दिस इज बोथ अ मिथ एंड अ फैक्ट। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें दुनिया से सीखनी चाहिए। मैं नहीं कहती कि नहीं सीखें, नहीं खाएं। जैसे एवोकाडोज हैं, हम मानते हैं कि वो बाहर से आया हुआ फ्रूट है, तो इसलिए हमें एग्जॉटिक फ्रूट की तरह उसको हम ट्रीट करते हैं, और उसको एग्जॉटिक और अपने हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद समझते हैं। दोनों ही बातें सच्ची हैं, एग्जॉटिक है भी और नहीं भी, लेकिन हमें वो खाना चाहिए। अगर हमें दुनिया से कुछ सीखने को मिलता है तो हमें खाना चाहिए। इंडियन एवोकाडो और इंटरनेशनल एवोकाडो, उसमें कोई फ़र्क नहीं है, उसमें कोई फ़र्क नहीं है, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन हैविंग सेड दैट, हमने बचपन में क्या खाया? बेर खाए, फालसे खाए, हाँ, है ना, और इसी तरह की बहुत सारी बेरीज खाई, बेर खाए, फ्रूट्स खाए, लोकल फ्रूट्स खाए, रामफल खाया, ये खाया, जो उस समय उस मौसम के हिसाब से हमें मिलता था। तो वो तो उसमें इतनी एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, वो इतना सुपर फूड है कि वो किसी भी आजकल की कोई भी फ्रूट के मुकाबले से बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है हमारी हेल्थ के लिए। तो वो ज़रूर खाएं। बाकी आप एवोकाडो भी खाएं या कुछ और भी खाएं, लेकिन हमारी जो ग्रेन्स हैं, हमारे जो फ्रूट्स हैं, हमारे जो वेजिटेबल्स हैं, वो ज़रूर खाएं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
सुपर फूड्स के नाम पे अगर हम बात करते हैं, ये क्या है ये सुपर फूड, सुपर नट्स? अगर मैं सिर्फ ये खा लेती हूँ तो चलता है, लाइक, एंड बिकॉज आजकल इतने सारे ग्रेन्स आ रहे हैं, क्विनोआ एंड एवरीथिंग विच इज सो एक्सपेंसिव आल्सो, राइट। डू यू थिंक दैट इज लाइक वर्थ इन्वेस्टिंग, या फिर जो हमारा जो लोकल फूड है, Right. जो हमारे घर में पहले के टाइम पे बनता था, Right. दैट इज मोर न्यूट्रिशन? हमें क्या हमारी बॉडी पचा पाती है ये सब चीजें? हाँ, ये दोनों क्वेश्चन आपने बहुत अच्छे पूछे यानू। एक इंजन है, उसमें चल चल के बहुत ग्रीस लग गई है, बहुत वो उसमें रस्ट लग गई है, उसमें हम ऊपर से उसको पेंट कर देंगे तो इंजन क्या बढ़िया चल पड़ेगा? वो नहीं चलेगा ना। पहले तो वो ग्रीस है, रस्ट है, या उसकी सर्विसिंग होनी है, वो करेंगे ना पहले। तो इसी तरह अगर हमारी बॉडी में हमने उसको इतना अब्यूज़ कर लिया है और हम सोच रहे हैं सुपर फूड ऊपर से डाल के उसको ठीक कर लेंगे, तो वो नहीं होगा। सबसे पहले सुपर फूड है क्या? सुपर फूड इज़ नथिंग बट अ कॉन्सेंट्रेटेड वर्जन ऑफ अ न्यूट्रिएंट, कि उस चीज़ में छोटी सी अमाउंट में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हमें इकट्ठे मिल जाते हैं, तो वो सुपर फूड बन जाता है कि इतना सा खा लिया तो हमें इतने न्यूट्रिएंट्स बचाएंगे। लेकिन हमारे डाइट में, हमारे लाइफस्टाइल में वो सब चीज़ें पहले से मौजूद हैं इन अ कॉम्प्रिहेंसिव वे, वो है हमारी डाइट में। अगर हमने वो चीज़ें फॉलो कर रहे हैं और हमारा अंदर का इंजन रस्ट नहीं लगा है, तो वो चीज़ें हमारी होलिस्टिक लाइफस्टाइल हमें उतना ही फ़ायदा देंगे जितना एक सुपर फूड। लेकिन अगर हमारी डिजीज़ है, हमारी बॉडी में ग्रीस लगी हुई है, कोलेस्ट्रॉल है, रस्ट लगी हुई है, ऑर्गन फंक्शन काम नहीं कर रहा है, तो जितना मर्जी सुपर फूड खा लें वो हमें फ़ायदा नहीं देगा। तो उसका एक तरीका होता है, उसको हमें फॉलो करना चाहिए। एक इंटीग्रेटिव अप्रोच है, पहले इस टॉक्सिन्स को क्लियर करने के लिए हमें काम करना चाहिए। आयुर्वेदा में पंचकर्मा एक ट्रीटमेंट होती है जिसमें हम 5 चीज़ों को यूज़ करके बॉडी को डिटॉक्सिफाई करते हैं। ओके। उसमें विरेचन है, उसमें क्लेंजिंग, पल्जिंग वगैरह जो भी उनके प्रोसीजर हैं, उसके थ्रू घी खाकर, घृत इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दैट, उसके थ्रू अपनी बॉडी को पर्ज करते हैं, क्लीन करते हैं, डिटॉक्स करते हैं, इसीलिए ताकि जब हम उसमें रसायन डालें, नरिशिंग चीज़ें डालें, तो बॉडी को फ़ायदा करें। तो उसमें चाहे हम उसको हमारे जो बेसिक हमारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे उगती हैं, जो हमारे नानी दादी और हमारे पूर्वजों ने खाया वो खाएं या सुपर फूड खाएं, फिर इतना फ़र्क नहीं पड़ता। पर मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ not to have superfoods only, but to also clean your body, detoxify your body, and the body and the mind, दोनों को हमें डिटॉक्सिफाई करना पड़ेगा, तब जाके हम कुछ भी अच्छा खाएं तो हमारे शरीर को लगता है। आयुर्वेदा हमारे हॉर्मोन्स को कैसे बैलेंस करता है? क्योंकि आजकल एक लाइफस्टाइल जो डिजीज है, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है हमारे हॉर्मोन्स को। हार्मोनल इम्बैलेंसेस, जितनी भी बीमारियां हैं, स्पेशली पीसीओडी, राइट, विच इज कॉल्ड एज हार्मोनल इम्बैलेंस और लाइफस्टाइल डिजीज। राइट, या हम इसको कैसे बैलेंस कर सकते हैं? हॉर्मोन्स है क्या? इट्स अ गुड क्वेश्चन। एक तो पहली बात, लोग बहुत सारी प्रॉब्लम्स को हार्मोन से एसोसिएट नहीं करते, लेकिन आप समझ रहे हैं कि हार्मोन्स कितने इंपॉर्टेंट हैं। फिर दूसरा, हम ये नहीं समझते कि कौन से हार्मोन्स हैं जो आपस में इतना इंटरलिंक्ड हैं, तो हमें उन सबको देखना चाहिए, ना कि सिर्फ एक हार्मोन को जो हमें डायरेक्टली हमें इफेक्ट कर रहा है। इनडायरेक्टली भी बहुत सारे हार्मोन्स हमें इफेक्ट करते हैं। पहली बात तो लोग जानते नहीं हैं हार्मोन्स का। दूसरी बात, जो आपस में लिंकेजेस है वो नहीं समझते। तो अगर हम खाली हार्मोन्स को समझें, तो हार्मोन्स सबसे पहले अगर हमें बात करनी चाहिए तो इंसुलिन की बात करनी चाहिए, देन करनी चाहिए थायराइड की, देन हमारे दूसरे हार्मोन है, सेरोटोनिन है, न्यूरोट्रांसमिटर्स हैं, डोपामाइन है, हैप्पी हार्मोन जिसकी आप बात करते हैं, पीस हार्मोन। हैप्पी हार्मोन हमें क्या बोलते हैं, हम उसको क्या, हमारी बॉडी में क्या उसका फंक्शन है हमें समझना चाहिए। एक पीस कैसे क्रिएट होती है हमारी बॉडी में, क्या उसका हार्मोन है, हमें समझना चाहिए। उस पीस हार्मोन की वजह से हम कितनी चीज़ें लाइफ में ठीक कर पाते हैं, अपने लाइफस्टाइल को ठीक रख पाते हैं, अच्छी हैबिट्स एक्वायर कर पाते हैं, हमें वो लिंकेजेस समझने चाहिए। तो अगर डिटेल में अगर बात करें तो इंसुलिन जो है वो ऐसा हार्मोन है जो पैनक्रियाज बनाती है, और वो डिटर्मिन करती है कि हमारा शुगर का मेटाबॉलिज्म कैसे होता है, हमारे खाने में जितनी शुगर जा रही है, जितने कार्ब्स जा रहे हैं, वो कैसे, उसका मेटाबॉलिज्म कैसे हो रहा है, कैसे वो हमारे शरीर को लग रहा है। तो पैनक्रियाज वो हार्मोन बनाती है जो शुगर को मेटाबोलाइज करती है। हम ये चीज़ नहीं समझते हैं। हम समझते हैं कि हमें डायबिटीज़ हो गई है, इसका मतलब ये होता है कि हमारी ब्लड शुगर बढ़ गई है। ये तो कहने वाली बात है कि हमें चोट लग गई, हमें दर्द हो रहा है, हम ये कह रहे हैं तो दर्द हो रहा है इसलिए हमें चोट लग गई, ऐसा नहीं होता है। चोट कहाँ लगी है पहले ये समझना है। चोट हमारे पैनक्रियाज को लगी है, हमारी इंसुलिन इनफ नहीं बन रही है, तो हमारा ब्लड शुगर बढ़ रहा है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ऐसा क्यों हो रहा है। सिमिलरली थायराइड हार्मोन की अब बात करते हैं, लेवल्स ऊपर नीचे हो रहे हैं, T3, T4, TSH।
हम उसको भी नहीं समझते कि वो क्यों, एक माइंड में, ब्रेन में एक पिट्यूटरी ग्लैंड होता है जो हार्मोन सिक्रीट करता है, जो थायराइड को बताता है कि अब आप ये हार्मोन बनाइए, जो लिवर उसको कन्वर्ट करता है इनटू एक्टिव फॉर्म ऑफ थायराइड। तो वो हमें नहीं पता। हाँ तो हम तो समझते हैं थायराइड हार्मोन की प्रॉब्लम है तो वहीं से फिक्स होगी। उसके बहुत सारे तरीके हैं फिक्स करने के, बेस्ड ऑन व्हाट इज़ द रूट कॉज। आपका लिवर फैटी है, दैट कैन इन्फ्लुएंस योर थायराइड हार्मोन। सो कहने का मतलब ये है, हार्मोन्स को समझते हैं पर उतना ही समझते हैं, एंड उसका ट्रीटमेंट बहुत होलिस्टिक होता है। आपको माइंड, बॉडी, ऑल द ऑर्गन फंक्शंस को साथ में लेके चलना पड़ता है टू ट्रीट वन हार्मोन और टू ट्रीट वन ऑर्गन फंक्शन। इंटरेस्टिंग। जैसे पीसीओडी की आपने बात करी, तो पीसीओडी का खाली एक हार्मोन से रिलेशन नहीं है, बहुत सारे हार्मोन से रिलेशन है। आपका एड्रीनल फंक्शन क्या है, कितना कॉर्टिजोल है आपकी बॉडी में। कॉर्टिजोल जब बनता है जब आपको स्ट्रेस होता है, और अगर स्ट्रेस हो रहा है, कॉर्टिजोल खत्म हो गया, तो वो कहाँ से आएगा? वो एक फीमेल हार्मोन से बनता है, प्रोजेस्टेरॉन से बनता है। प्रोजेस्टेरॉन सारा खत्म कर दिया कॉर्टिजोल बना के, तो ईस्ट्रोजन इम्बैलेंस हो जाता है, तो पीसीओडी हो जाता है। तो कहाँ से कहाँ एक रिलेशन निकलता है वो हम लोग को नहीं पता। तो सारे हार्मोन्स आपस में लिंक्ड हैं, माइंड बॉडी आपस में लिंक्ड है। स्ट्रेस का कितना इम्पैक्ट है बॉडी पे, वो हार्मोन्स उससे इफेक्ट होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंटीग्रेटिव अप्रोच में हम लोग वी आर एबल टू हैंडल एंड वी आर एबल टू सॉल्व एंड गो टू द रूट कॉज एंड देन ट्रीट द। जो एक्सटर्नल हम हार्मोन्स लेते हैं लाइक एंटी डिप्रेसेंट्स अगर हमें देते हैं तो मतलब हमारे पास हैप्पी हार्मोन्स आ रहे हैं, थोड़ी देर के लिए हम बहुत रिलैक्स हो जाते हैं। और आजकल बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल से ट्रेंड चल रहा है, मैं हर 5वें इंसान के मुंह से सुन चुकी हूँ कि हमने एंटी डिप्रेसेंट लिया हुआ है। राइट। सो एंटी डिप्रेसेंट यूजुअली क्या होता है, इट्स अ सेरोटोनिन ब्लॉकर। तो क्या होता है, ये इनमें खुद में हार्मोन्स नहीं होते हैं, दे ब्लॉक द रिसेप्टर्स इन आवर बॉडी विच अब्जॉर्ब दीज हार्मोन्स। तो जैसे हम डोपामिन की बात करें, सेरोटोनिन की बात करें, तो ये जो एंटी डिप्रेसेंट जो हम दवाई खा रहे हैं, वो हमारी बॉडी में हर सेल में रिसेप्टर्स होते हैं, उसको ब्लॉक कर देता है, बंद कर देता है। तो ये जो हार्मोन फ्लोट हो रहे हैं उनको वो अब्जॉर्ब नहीं करता, उससे वो हार्मोन्स फ्लोट होते रहते हैं, तो सफिशिएंट बैलेंस मेंटेन रहता है, तो हमारी वो हैप्पी फीलिंग मेंटेन रहती है। जैसे ही वो हार्मोन सेरोटोनिन खत्म हो गया, बॉडी में अब्जॉर्ब हो गया, तो हमारी वो पीसफुल ब्लिस की स्टेट खत्म हो जाएगी और हमें एंग्जाइटी सी होने लगेगी या हमें डिप्रेशन होने लगेगा, क्योंकि वो हार्मोन का लेवल बिगड़ रहा है। तो ये जो ब्लॉकर हैं, ये जो एंटी डिप्रेसेंट्स हैं, ये अब्जॉर्प्शन से रोकते हैं जो करंट हार्मोन्स को, तो ये उसका फंक्शन है। लेकिन आयुर्वेदा में या किसी भी होलिस्टिक अप्रोच में हम लोग होलिस्टिक बात करते हैं, तो हम सारे हार्मोन्स को इकट्ठे साथ लेके चलते हैं, उनको साथ में ट्रीट करते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन था जो मेरे ख्याल से हम सब व्यूअर्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा कि कितना ज़रूरी है हमें अपने इमोशनल बैलेंस को मेंटेन रखना, सेल्फ अवेयर, जिस जहाँ से हमने अपनी बातचीत शुरू करी थी उसको जानना, क्योंकि जब तक हमें वो नहीं पता होगा हम बाकी की सब चीज़ों को, हमारा जो प्लैनेट है, हैप्पी प्लैनेट, इमोशनल प्लैनेट, हम सब कुछ तबाह कर देंगे। राइट। और इससे हमारी सारी लाइफस्टाइल डिजीजेस, हमारी क्रॉनिक डिजीजेस धीरे धीरे बढ़ती जाएंगी। एब्सोल्युटली। वो हमने कंपाउंडिंग की बात करी ना, हमारी स्मॉल लिटिल चेंजेस वी मेक एट द एज ऑफ 20, 15, 10, दे विल कंपाउंड टू गिव अस अ बेटर मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ इन 50s and 60s and 70s। एक क्वेश्चन मैं आपसे जरूर पूछना चाहती हूँ, सक्सेस स्टोरी आपकी क्या है? आप चार्टेड अकाउंटेंट से यहाँ तक इस जो जर्नी है, व्हाट इज दैट? So I was very happily practicing my profession, which was a chartered accountancy, which I obviously worked very hard for, and मेरी journey भी like any other chartered accountant today, वही good multinational firm में काम करके experience लेके then moving on to another multinational, वहाँ पे काम करके रही जैसे सबकी रहती है। लेकिन 2008-9 में मुझे एक प्रॉब्लम हो गई। वी वर ट्रैवलिंग टू सम कंट्रीज इन साउथ ईस्ट एशिया एंड आई एंडेड अप हैविंग समथिंग रॉ। शायद गलती से मेरे खाने में कुछ कंटेमिनेशन हो गई, रॉ मीट आ गया, तो मुझे बहुत सिवियर अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गया। तो उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम हुई, नॉट ओनली कि डायरिया हो रहा है या कॉन्स्टिपेशन हो रही है, बट इतना अल्सर ने इतना प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया कि मैं डे टू डे लाइफ जी नहीं पा रही थी, मैं काम पे नहीं जा पा रही थी, बेड से नहीं उठ पा रही थी, इतना दर्द था, मैं कुछ भी खाती थी मुझे डायरिया हो जाता था। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस के बहुत सारे सिम्टम्स या इफेक्ट्स होते हैं जो हमारी डे टू डे लाइफ को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं। तो मैं सिंगापुर में थी एंड वहाँ पे डॉक्टर्स ने बोल दिया कि इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है,
हम आपको ये देंगे या स्टेरॉइड्स देंगे मैनेजमेंट के लिए, और आपको लाइफ लॉन्ग ये दवाइयाँ खानी पड़ेंगी मैनेजमेंट के लिए, ये सिम्टम्स मैनेजमेंट के लिए आपको ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी. Then I came to India. I made an effort. I took leave and I came to India, and I consulted with my known doctors and friends. And I was guided to this person who was practicing modern medicine and Ayurveda. Okay. So he told me that modern medicine has no cure, so hence he's integrating Ayurveda with modern medicine, and he guided me. And then मैंने बहुत चीज़ें ट्राई करी, उनको फॉलो किया, फिर अपने आप पे इतना सेल्फ डिसिप्लिन ऑफ 6 months wherein I did not eat anything which was oily or spicy or which had even the mild amount of spice, and many other precautions and some herbs I took to manage myself, and I cured and reversed my ulcerative colitis. Wow. So that was an amazing experience. I think people around me were like completely shocked that I could even reverse that. And hence you moved into this profession. Then I got great confidence in this field. I thought जैसे ही मुझे मौका मिलेगा मैं इसको सीखूंगी, जानूंगी और इसमें काम करूंगी, which is what I eventually did some years later. This is amazing. जाते जाते मैं कुछ टिप्स जरूर लेना चाहती हूँ आपसे. एंटी एजिंग, या आई कैन सी योर स्किन ग्लोइंग लाइक एनीथिंग, एंड लाइक एट दिस एज, वाओ, नो वन कैन प्रेडिक्ट दैट यू हैव अ डॉटर स्टडीइंग मेडिसिन इन यूके. वाओ. अब वो डॉक्टर, जैसे जैसे हमने बात करी है पिछले 2 महीने में, अब वो डॉक्टर बन चुकी है, वो काम कर रही है किसी हॉस्पिटल में. वाओ, लाइक नो वन कैन इमेजिन दैट थिंग. सो मुझे इसकी टिप्स जरूर बताइए. एंटी एजिंग, हेयर फॉल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है. राइट. सो एंटी एजिंग है, हेयर फॉल है, स्किन इश्यूज हैं, ये एक ही अम्ब्रेला ऑफ इश्यूज में आते हैं. जो हमारा लाइफस्टाइल है, जो हमारा खाना पीना है, सब चीज़ें इनको तीनों चीज़ों को डायरेक्टली अफेक्ट करती हैं. द रेट ऑफ एजिंग जिसको हम बोलते हैं, इट इज़ अफेक्टेड बाय व्हाट वी ईट एंड हाउ वी लिव आवर लाइफ, राइट. सो मैं ये मानती हूँ कि खाने के अलावा किस तरह से हम सोते हैं, हमारा स्लीप साइकिल है, किस तरह से हम सोचते हैं, क्या मेरी थॉट्स हैं, मैं क्या दूसरों के बारे में सोचती हूँ, राइट, क्या मैं दूसरों के लिए करती हूँ, ये सब चीज़ें एडअप करती हैं टू अ हेल्दी माइंड एंड बॉडी. सो ये तो हो गया एक इंटीग्रेटिव अप्रोच. अगर हम खाने की बात करें तो सबसे पहली चीज़ है कम खाएं. कहते हैं ना, कम खाओ गम खाओ. तो कम खाइए. सबसे पहला, हम सोचते हैं जितना अच्छा मिल रहा है हम खाने को हम खा लें, उससे हमें बहुत फ़ायदा होगा. ऐसा नहीं है. कम खाने से जितना फ़ायदा होगा उतना अच्छी चीज़ें खाने से नहीं होगा. तो कम खाएं, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. कम खाएं, लिमिटेड नंबर ऑफ आवर्स के लिए खाएं. ट्राई करिए इंटरमिटेंट फास्टिंग. 8 आवर्स की विंडो में खाएं, नहीं तो 10 आवर्स की विंडो में खाएं. दैट इज़ द मोस्ट इफेक्टिव वे टू मैनेज योर स्किन, हेयर एंड एज ग्रेसफुली. नंबर 2, ड्रिंक मोर, ईट लेस. पिए ज़्यादा, खाएं कम. मोर हाइड्रेशन. हाइड्रेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ब्लड में ब्लड की विस्कोसिटी है, ब्लड की टॉक्सिन्स को एक्सपेल करने की कैपेसिटी है. मतलब हमारी बॉडी में जो भी कचरा जनरेट हो रहा है उसको निकालने की कैपेसिटी हमारी फ्लूइड से आती है, हाइड्रेशन से आती है. ये सब चीज़ें मिल के हमें एज करती हैं, हमारे हेयर फॉल करती हैं, हमारे स्किन इश्यूज़ क्रिएट करती हैं. तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं टू मैनेज योर ब्लड का विस्कोसिटी. विच क्या क्या पी सकते हैं हम? कुछ ऑप्शंस हैं ड्रिंक्स में पानी के अलावा? हाँ, तो हम चाय कॉफ़ी की बात ना करें, उसके अलावा हम क्या करना चाहिए हमें, तो बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे किचन में जिसको हम यूज़ कर सकते हैं टू क्लेंज आवर बॉडी. सो डिपेंडिंग ऑन योर बॉडी टाइप अगेन, अगर आपकी पित्त प्रकृति है तो आपको हीटी स्पाइसेस नहीं खाने चाहिए, नहीं लेने चाहिए. तो फिर आपको फेनल जूस सूट करेगा, आपको इलायची सूट करेगी, आपको जीरा सूट करेगा. लेकिन अगर आपकी कूलिंग बॉडी है, अगर आपकी वाता बॉडी है, तो आपको हीटी स्पाइसेस सूट करेंगे. आपको हर जो भी स्पाइस आपकी किचन में है, आपका सिनेमन हो गया, कोरिएंडर हो गया, धनिया जिसे हम बोलते हैं, या जीरा हो गया, ये सब हम ले सकते हैं. द राइट वे टू डू इज़, इसको रात को हम सोक करेंगे, होल सीड्स को, होल धनिया, होल जीरा या होल फेनल या होल अजवाइन या होल मेथी हम रात को सोक करेंगे. सुबह उसको बॉईल करेंगे, उसको स्ट्रेन करेंगे और उसको हम छान के फर्स्ट मिलाकर एक साथ नहीं, सोक कर सकते हैं? जैसे मैंने बताया, आपकी प्रकृति के हिसाब से आपको क्या स्पाइसेस सूट करते हैं, आपको वो ही लेने चाहिए. वन साइज डजंट फिट ऑल. जैसे हम कहते हैं कि हमारे फ्रेंड ने किया हम भी करने लगते हैं, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए. हमें अपनी बॉडी को समझना चाहिए. वो हम आइटरेशन से ही समझ सकते हैं कि हमें सूट नहीं कर रहा है, इसे हीट बन रही है,
तो हमें इसको छोड़ देना चाहिए, या फिर हम किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास भी जा सकते हैं, या फिर आप मेरे पास आ सकते हैं. आई कैन डू एन असेसमेंट फॉर यू एंड ट्राई टू टेल यू कि आपको ये स्पाइसेस आपको सूट करेंगे, ये नहीं करेंगे. द फर्स्ट थिंग टू डू इज हैव हर्बल वाटर्स, विच एवर हर्ब वर्क्स फॉर यू, you can have that. Second thing is coconut oil. Coconut oil is an anti-aging ingredient which you can add to your lifestyle. So अगर आप सुबह गर्म पानी में उसको एक चम्मच लें, वर्जिन कोकोनट ऑयल, दैट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू. दिस इज अ क्विक टिप. वैसे तो लाइफ में बहुत कुछ करना पड़ता है, एक इंटीग्रेटिव अप्रोच चाहिए, एक माइंड को भी बॉडी को भी साथ में लेके चलना चाहिए. जैसे मैंने बताया कि अच्छी सोच आपको यंग बनाती है. अगर आप दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं तो आप यंग दिखेंगे. अगर आपके दिमाग में बहुत ख्याल आते हैं कि परेशान रहते हैं, जेलसी है, एनवी है, तो वो आपके चेहरे पे आपके शरीर में वो कभी ना कभी दिखने लगेगा. तो वो भी एक तरीका है. लेकिन मैं आपको क्विक टिप दे रही हूँ, ये 2-3 चीज़ें जो आप कर सकते हैं टू अप्लाई इमीडिएटली इन योर लाइफ. वो तो आप कर ही सकते हैं. बिल्कुल. थैंक यू शालिनी. ये सेशन बहुत ज़्यादा इंसाइटफुल रहा है. आपने बहुत सारे हमारे मिथ्स को बर्स्ट किया है और बहुत इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में बताया, बहुत सारी नॉलेजेबल चीज़ें शेयर करी हैं. मैं अपने व्यूअर्स को ज़रूर कहना चाहती हूँ, अब जब अगर आपको असेसमेंट करवाना है, इस चीज़ के बारे में और जानना है, अपना असेसमेंट ज़रूर करवाइए. एंड शालिनी का सारा डिटेल मैं आपको नीचे कैप्शंस में लिख दूँगी. आप प्लीज़ उनसे कंसल्ट कीजिए, देखिए, एंड स्टे ट्यून फॉर आवर नेक्स्ट टॉक ऑन अनु टॉक्स. Thank you. Thank you, Anu, for having me here, for allowing me to give an opportunity to share that holistic is the way to go, root cause is the way to go, basic is the way to go. I use all these 4 modalities, चाहे वो मॉडर्न मेडिसिन है, चाहे वो आयुर्वेदा है, चाहे EQ का एक टूल है, साइकोसोमेट्रिक टूल्स हैं. आई यूज़ ऑल ऑफ दीज टू assess and then come out with a simple solution that works for each one of us in a very customized way. So reach out to me through WhatsApp, or you can follow my content on my Insta page, which is coach_Shalini, and keep watching, keep using these tips, and enjoy the benefits, and do let me know how you benefit from them. See the caption below for more information.